questions. Very good. So today we will be discussing, the questions of exercise number 1, chapter quadrilaterals. We are discussing quadratic equation. I'm sorry, not quadrilaterals. We are discussing board level type questions, type 1, which is very short type questions, and we are discussing question number 5. Find the value of k for which the quadratic equation has equal roots. सर इक्वल रूट्स का मतलब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 0 होगी. इक्वल रूट्स का मतलब अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0. That is, and alpha plus beta, here from here I am getting alpha plus beta is equal to k by 2. Alpha plus beta is equal to k by 2. And what condition more I am having? See, equal roots means b square minus 4ac should be equal to 0. We did a similar question that day also, that if the roots are equal, that means b square minus 4ac should be equal to 0. I was trying to tell you something that day also, लेकिन fortunately I was not able to say. See, यहाँ पे क्या मिल रहा है? एक मेथड तो इस क्वेश्चन को करने का ये हो गया कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k. Whatever is the value of k you are getting, make sure that that value of k also satisfies the given equation, and if it satisfies, then that value of k will be your answer. Another method will be see, alpha minus beta is equal to 0 and alpha plus beta is equal to k by 2. That gives me, my dear friend, alpha is equal to k upon 4, and this is also equal to beta. This is also equal to beta, which is equal to k upon 4. Now this alpha is a root of this equation. So if I put x is equal to k upon 4, my equation will become 0. If I put x equal to k upon 4, my equation will become 0. तो आप एक काम ये कर सकते हैं, 2 times of k upon 4 whole square minus k multiplied by k upon 4 plus k is equal to 0. सॉल्व जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? k स्क्वायर अपॉन 8 माइनस k स्क्वायर अपॉन 4 प्लस k is equal to 0. Solve karo, what you are getting? Are you getting k equal to no, not like that, I'm sorry. Now what will happen? It will become minus of k square upon 8 plus k is equal to 0 minus k square plus 8k is equal to 0. K square minus 8k is equal to 0. That means you will get two values of k. One value of k is 0. Another value of k is equal to 8. Now I have to check कि k equal to 0 रखने पे कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जा रही है. ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. k equal to 8 रखने पे, so basically I am getting two values of k. One value of k is 0 and the another value of k is 8. क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? से यस और नो बोलो भाई. डाउट है. हाँ बोलिए. सर आपको अल्फा और बीटा k by 4 कैसे आया? बेटा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू k by 2. यहां से जब मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो आई गॉट 2 अल्फा इज इक्वल टू k by 2. From here, when I added both the equations, I got 2 alpha is equal to k by 2. That gives me alpha equal to k by 4. Now I substituted this value here and solved it, and I got the answer. This is method number 2 for solving the question. Method number 1 was b square minus 4ac is equal to 0. Both the methods are same only. Both the methods are equally correct. So this is the method of solving the question. Shrey, is it clear? Sir, I was having doubt in the next question, not this. You were having doubt in the next question. अच्छा, 6th में आपको डाउट था. सॉरी, मुझे लगा कि 5th में डाउट है. ठीक है. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5th बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करके किया होगा. कोई ऐसा है जिसने क्वेश्चन नंबर 5th को अल्फा की वैल्यू k by 4 पुट करके किया है? एनीबडी इन द क्लास?
Anybody in the class who solved this question like this? No, कोई बात हाँ फर्स्ट वाला नहीं बता सकते? क्या बोल रहे हो बेटा? फिर आप इस क्वेश्चन का आपने जो अभी दूसरा मेथड बोला सर वो भी बता सकते हैं? दूसरा ही तो बताया अभी आपको कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है बिकॉज द रूट्स आर इक्वल एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू k बाई 2। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो अल्फा बिकम्स k बाई 4। Put alpha equal to k by 4 in this equation and solve and get the value of k. The second method was b square minus 4ac को, that is discriminant को 0 put कर दीजिए, you will get your answer, right? If the roots are equal, that means the discriminant is 0. Next question. Which constant must be added and subtracted to solve the quadratic equation this by the method of adding completion of square? Okay, so basically you guys want me to explain the method of completion of square. चलो भाई करते देखते हैं. What was the issue, Shrey? What was the issue in the question? नहीं सब्ट्रैक्टेड मतलब सॉरी एडेड तो समझ में आ गया लेकिन मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पूछना क्या चाहते हैं एडेड इन बेटा जिस कांस्टेंट को ऐड करोगे a प्लस बी होल स्क्वायर बनाने के लिए उसी को तो सब्ट्रैक्ट करोगे ना यार, यही तो पूछ रहा है. तो मतलब वो दोनों सेम ही हो गए जो कांस्टेंट है वो. ऑब्वियसली अब देखो बताता हूं. सबसे पहले अच्छा सर तो सबसे पहले कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर में क्या करते हैं? कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर में बेटा सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव करते हैं, याद रखना इस बात को. तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू 9 इंटू एक्स माइनस √2/9 इज इक्वल टू 0. ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा कैंसिल कर दो, इसको इस तरीके से लिख देते हैं. डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया. ठीक है, अब क्या करेंगे भाई देखो, अब क्या करेंगे देखो. एक्स स्क्वायर, तो फाइनली माई इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस x/12 minus √2/9 is equal to 0. Now what I will do, I will try to modify it. I will try to write it in the form of completion of square. कैसे करते हैं भाई देखो जरा. This will be x square plus 2 multiplied by x/24 प्लस 1/24 का होल स्क्वायर, 1/24 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1/24 होल स्क्वायर माइनस √2/9 इज इक्वल टू 0. ठीक, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया भाई आगे देखो. दिस विल बी x plus 1/24 whole square, 24 square is 576, will be equal to 1/576 plus √2/9. ठीक है, हम लोगों ने कौन सा कांस्टेंट ऐड किया था यहाँ पे? हम लोगों ने क्या ऐड किया था यहाँ पे? 1/24 होल स्क्वायर को ऐड किया था. हम लोगों ने क्या सब्ट्रैक्ट किया था? हम लोगों ने 1/24 होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया था. सो माय करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1/24 स्क्वायर. तो मतलब लगा तो सर यही था सर, फिर मुझे पता नहीं चला तो मैंने यही स्टार्ट कर दिया, लेकिन सर आंसर 1/64 दिया है. 1/64 दिया है? हाउ इज इट ये पॉसिबल? सर मेरा भी यही आ रहा था, पता नहीं चला क्या. हाउ इज इट पॉसिबल? कोई मिस्टेक है क्या? 339 12 √2/9. No, the answer will be incorrect. Anybody in the class who has solved the question and getting correct answer? सुना है सौरभ राज, करिश्मा? सर यही आंसर आ रहा है. यही हाँ आंसर सर है. यही आ रहा है सॉल्व करने के हाँ, बाद. तो the question is incorrect. The question must be incorrect. If everybody is getting the same answer, that means I am correct. ठीक है ना?
गुड, ठीक है, थैंक यू स्तुति फॉर कंफर्मिंग. ठीक है, so that means this is error, so the answer will be this. See, my dear students, have confidence. हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ी है, हमने कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ी है जो हमने कम पढ़ा. हमने सब कुछ पढ़ के रखा है. अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, इतना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करो, इतने सवाल सॉल्व करो कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आप गलत नहीं हो, सामने वाला पर्सन गलत है. ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर. ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? ये कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ाई करने से, क्वेश्चन सॉल्व करने से. I told in the meeting also, most of you, एक second. Find the nature of the root. So, this क्या नाम है इस बच्ची का? Krishna, I will be explaining only one part. Rest part you have to do. Nature of the root निकालने के लिए I have to calculate D. D कैसे calculate करते हैं? My normal equation is, my general equation is ax square plus bx plus c. My general equation is ax square plus bx plus c, and the D for this equation is b square minus 4ac. Here also your general equation is, let us solve this part. Square root, cube root देख के आप लोग घबराते हो. The general equation is 2x square minus 3 root 2x plus 9 by 4 is equal to 0. एक काम करो, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दो. So your equation will be 8x square minus 12 root 2x plus 9 divided by 4 equal to 0. आगे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 4 एक नॉन जीरो नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ये 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग विच इज नॉन जीरो, ये 0 हो जाएगा. फाइनली योर इक्वेशन इज 8x स्क्वायर माइनस 12 रूट 2x प्लस 9. अब यहाँ पे अगर कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू बेटा मिल रही है 2, b की वैल्यू मिल रही है बेटा माइनस 12 रूट 2 और c की वैल्यू मिल रही है मेरे को 9. अब मुझे क्या करना है? b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. व्हाट विल बी? a की वैल्यू 8 है ना? की वैल्यू 8 होगी ना? a की वैल्यू 8 होगी, सॉरी a की वैल्यू 8 है. दैट वाज, हाँ ठीक है, a की वैल्यू 8 होगी. ठीक है यार, b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करो तो b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 12 रूट 2 होल स्क्वायर, दैट इज माइनस 12 रूट 2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 9. अब देखो इसको किया, 12 स्क्वायर होता है 144, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, तो 144 इंटू 2 इज 288. दिस इज इक्वल टू 288 माइनस 8 4 जा इज 32. 32 इंटू 2 कितना होता है बेटा, बताओ जरा. 32 into 2, only Krishna will tell, nobody else. Krishna, what is the value of 32 multiplied by 9? Krishna? Perhaps her mic Yes, is not. हाँ बेटा, what is the value of 32 multiplied by 9? Please tell me. Just a second, sir. First. Yes, sir, 288. 288. Now this here I am getting 288 minus 288, which is equal to 0. Now if my b square minus 4ac equal to 0, that gives me my dear friends, that roots are real and equal. आपको हर केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना था, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करने के बाद आप बताओगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया, दैट मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आया, दैट मीन्स रूट्स आर नॉट रियल, इमेजिनरी या ऐसा कोई भी वर्ड यूज मत करना. अगर b square minus 4ac is greater than 0, then you have to write that roots are real and unequal. ठीक है? So this is how the question is to be done. Now let us move to the next part. Question number 8 में problem थी. I am solving only one part of the question.
by using the quadratic formula. Quadratic formula मतलब आपको डायरेक्टली यूज करना है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. आई एम सॉल्विंग पार्ट नंबर 2. ठीक है कृष्णा, रेस्ट ऑफ द आपने कोई स्पेसिफिक पार्ट था इसमें क्या? लेट मी सी द चैट. थर्ड पार्ट, ठीक है. सो आई वांट टू सॉल्व सी. अच्छा, सेकंड पार्ट आप लोगों ने सॉल्व किया तो आप लोगों ने कुछ खास किया है इस सेकंड पार्ट में? एनीथिंग यूनिक दैट यू गाइस हैव डन, या सीधे सीधे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर दिया? जहां तक मुझे पता है नहीं किया होगा. देखो कन्वेंशनली व्हाट यू शुड डू इज make the coefficient of x square is positive. This is the conventional way of solving the question. Make the coefficient of this thing b square, make the coefficient of x square as positive. तो पूरे के पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो योर इक्वेशन विल बी 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट वे आल्सो यू आर गेटिंग द आंसर, दिस वे आल्सो यू आर गेटिंग द आंसर. दिस इज जस्ट ए सर कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं. दिस इज जस्ट ए कन्वेंशनल वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. क्योंकि जब 11th 12th में जब आप आओगे आप लोग और जब आप लोग नेचर ऑफ रूट्स या ये सारी चीजें पढ़ोगे, देयर इट इज स्पेसिफिकली सेड दैट वी मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव. नहीं दिया होता है तो हम उसे बनाते हैं -1 से मल्टीप्लाई करके. देन ओनली आवर हमारी सारी की सारी एनालिसिस उसी बेसिस पे है. यार विद इन 1 ईयर यू गाइस विल बी स्टडिंग फॉर 11 you guys will be studying 11 quadratic equation again. So let us inculcate good habits from now on, right? चलिए, let us discuss this one. Question number 3, part 3. भाई पार्ट 3 को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन को. एलसीएम ले लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. So it will be x square minus 2 root 11x plus 2 is equal to 0. अच्छा हाँ, इससे एक चीज याद आई. कभी अगर एग्जाम में आपको मान लो ये इक्वेशन दी हुई है और ये इक्वेशन अगर आपको, देखो बेटा एग्जाम में प्रिंटिंग मिस्टेक होती है. अगर आपको एग्जाम में ये इस तरीके से दिख रहा है रूट 11x प्लस 2 इक्वल टू 0, आपको ये एज्यूम करना है कि ये जो x है वो स्क्वायर रूट के, ये जो x है दैट इज नॉट इन रूट, बिकॉज इन दैट केस इक्वेशन क्वाड्रेटिक हुई ही नहीं. तो आपको ये एज्यूम करना है, यू हैव टू एज्यूम दैट दिस, ये जो स्क्वायर रूट है ये सिर्फ 11 तक है. सी it's sometimes it's very difficult to identify the minute errors. The persons who check the paper, they are also human beings, so it is very difficult. The person who is making the paper, he is also a human being, so it is very difficult to identify the minute errors. तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना. अगर कभी रूट 11x दिख रहा है तो that should be just a typing error, क्योंकि in that case it will not be a quadratic equation. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना. या कभी लीनियर इक्वेशन में भी आपको रूट x इंटू 6 दिख रहा है तो आप इसको नहीं, इन दैट केस इट विल बी क्लियरली मेंशन्ड. आई कांट से दैट इट विल बी root 6 into x or x into root 6 because that can be expressed as linear equation. But for quadratic equation, root sign will not be over x. ठीक है, आई होप मैंने जो बताया वो आप लोग को समझ में आ गया. अब यहां तक कर दिया, अब सीधे सीधे यूज कर लो. x will be equal to minus b, that is minus of minus 2 root 11 plus minus, यहाँ पे लिख रहा हूँ b square, that is 4 into 11 minus 4ac, that is 4 into 8 divided by 2a, that is 2 into 1. सॉल्व कर दो, जो भी आएगा वैल्यू दैट विल बी योर आंसर. ठीक है, 2 वैल्यूज आएंगी, जो भी 2 वैल्यूज आई दैट विल बी योर आंसर. आई होप आई एम क्लियर. आई होप आई एम क्लियर माय डियर फ्रेंड्स. ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए. 9, 10, 11, 12, 13. सर 13th क्वेश्चन में सर आंसर 1 भी आ रहा है और 14 भी आ रहा है, तो सर हमें क्या कंसीडर करना चाहिए? If Jeba were younger by 5 years, what
she really is, the square of her age in years would have been 11 more than 5 times her actual age. चलो let us try to understand. सर उसमें 14 आएगा। चलो देखो इनका अच्छा डाउट। आने को मतलब जनरली 14, लेकिन 1 भी एक सोल्यूशन मिल रहा है, तो 1 भी पॉजिटिव है, तो शायद से नहीं वो बेटा, एक जो नहीं सुनो 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 -5 भी एक कर मिनट सकते ना। एक मिनट सुने, लेट मी एक्सप्लेन। बेटा 1 और 14 आ रहा है, ठीक है, तो जो 14 आ रहा है वो तो ठीक है। यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है, शी वेर यंगर बाय 5 years, तो अभी 1 साल उम्र है, 5 साल पहले की यंगर मतलब 5 साल पहले की उम्र, तो वो तो -4 years हो जाती ना, -4 year किसी सर, की एज लेकिन है। हाँ सर, फिर मैंने भी यही सोचा था कि शायद से माइनस में एज ना हो, लेकिन फिर हमारे एक्चुअली स्कूल में हमें बोला था कि जब इक्वेशन बना रहे हो फिर एज या करेंसी ऐसा कुछ हमें देखना नहीं होता, नेगेटिव में भी इक्वेशन बनेगी तो चलेगा। नेगेटिव में इक्वेशन बनेगी वो ठीक है, लेकिन नेगेटिव में एज नहीं हो सकता। बेटा बात को समझो, इक्वेशन बनाते वक्त हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चेक करते हैं, आपके स्कूल में एकदम सही कहा है। लेकिन एज जो आया, आप बोल रहे हो कि भाई जो जेवा है, ये जो बच्ची है, इसकी एज दो ईयर्स, दो पॉसिबल एजेस है, 1 year and 14 year, both are equally accepted, but the problem is when I am taking 1 year, my conditions are not satisfied. बात समझ में आई नहीं? My conditions are not satisfied. भाई 4 साल पहले, अभी 1 साल एज है, 5 साल पहले तो -4 years एज हो गई, that is not possible. So that is why I have rejected this value. ठीक है? यस सर, अंडरस्टूड। ओके, चलो श्रेय, आपको समझ में आता है ना मेरा एक्सप्लेनेशन? क्योंकि जब आपको समझ में आता है उस टाइम पे यू आंसर योर दिस थिंग इज डिफरेंट, और जब आपको व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड, योर वे ऑफ अंडरस्टूड इज डिफरेंट. आई होप यू अंडरस्टूड. I hope you understood what I आप क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, जब आपको समझ में आता है तो आप मोर पॉजिटिवली साउंड करते हो, अभी यू आर नॉट साउंडिंग दैट पॉजिटिव, यही पूछ रहा हूँ. नो सर, आई अंडरस्टूड सर, आई ठीक, अंडरस्टूड। चलो क्वेश्चन नंबर 14 15 किसी में डाउट है? सर एक बार 14 बताइए ना। 14 बता दूं? 9th के सेकंड पार्ट 9th का सेकंड पार्ट. चलो भाई पहले 9th का सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम. 9th का सेकंड पार्ट किस में आएगा? शॉर्ट आंसर में आएगा. चलो भाई 9th का सेकंड पार्ट देख लो भाई. 9th का सेकंड पार्ट बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. ओ माय गॉड, फैक्टराइजेशन करना है भाई. किसी ने फैक्टराइज किया है? किसी ने फैक्टराइज किया है इसको? सर फर्स्ट में सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट सर सेकंड वाला पार्ट। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, Yes, ठीक है, sir. चलो चलो हाँ सर किया। चलो देख लेते. अच्छी बात है, किया है, सबने किया है, अच्छी बात है. चलो देखते भाई. 9th का सेकंड पार्ट आपके फ्रेंड को डाउट है. लेट अस सी इट. व्हाट इज द डाउट? भाई इसको जो है फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो सबसे पहले 3√2 को और -√2 को मल्टीप्लाई करो. द प्रोडक्ट इज कमिंग आउट टू बी -6. अब -6 को इस तरीके से ब्रेक करना है such that the sum of the numbers is -5. What I will do is I will write it as 3√2x square -6x plus x minus √2 is equal to 0. देखो भाई, -6 plus 1 is -5 and 3√2 multiplied by -√2 is -6. My both the conditions are satisfied. अब यहां से कॉमन लेना शुरू करो. सर मैं 3√2 कॉमन लेना चाहता हूं. ले लो भाई, लेना चाहते हो तो कौन रोक सकता है आपको? 3√2x मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? मुझे x मिला और यहाँ पे मुझे √2 मिला. प्लस सर मैंने यहाँ से 1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे मेरे को x माइनस √2 मिला. ये कैसे कॉमन लिया सर, उसको भी देख लो, अभी समझाता हूँ कैसे कॉमन लिया. दिस इज इक्वल टू 0. नाउ व्हाट आई विल हैव, 3√2x plus 1
multiplied by x minus root 2 is equal to 0. X is equal to minus 1 upon 3 root 2 comma minus root 2. सर ये कैसे आपने 3 रूट 2 कैसे कॉमन लिया था, समझ में नहीं आया था मेरे को। समझ में नहीं आया था तो अभी समझो बेटा। हम लोगों ने जब हम बचपन में, जब हम लोग छोटे थे, अभी तो आप लोग बड़े हो गए हो, जब ये आप लोग छोटे थे तो आपने पढ़ा था रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 इज इक्वल टू 2। पढ़ा था ना, पढ़ा था ना। सेम काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। दिस 6 कैन बी रिटर्न एज 3 into 2. दिस 6 कैन बी रिटर्न एज 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर। अब सवाल ये आता है कि सर आपने 6 को 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 क्यों किया? बेटा हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे कुछ टर्म कॉमन लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 रूट 2 लिखा हुआ था, तो ऑब्वियसली आई एम रिक्वायर्ड टू टेक, इफ आई वांट टू टेक कॉमन, I should express 6 in terms of 3 root 2. So 6 is nothing but 3 root 2 multiplied by root 2. ठीक है सर? So this is what the thing is. Now let us move to question number 14. Students are saying that they have doubt in question number 14. देखो भाई क्या है question number 14? 14 ये रहा भाई 14. The question is, at present Asha's age in years is 2 more than square of her daughter Nisha's age. ठीक? When Nisha grows to her mother's present age, Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. ठीक? Find the present age of both Asha and Nisha. चलो करते। Okay. Let the present age of Nisha is x. Let present age of Nisha is equal to x. So present age of Asha will be equal to 2 more than square of her daughter's age, that is x square plus 2. ठीक है, दोनों की प्रेजेंट एज ये हो गई। आगे पढ़ो। When Nisha grows to her mother's present age, अब यहाँ पे ट्रिक है। चलो एक काम करते हैं। सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। श्रेय, योर एज इज, श्रेय सपोज योर एज इज 14 years and your father's age is 35 years. Okay, now if I'm asking when you become as old as your father, यहाँ पे क्या लैंग्वेज है? When she grows to her mother's present age. Now my question is, listen to me carefully. श्रेय, आपकी एज आज की डेट में 14 साल है, आपके फादर की एज 35 years है। मैं ये पूछ रहा हूं, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स your present age will be that of your father's age now. आपके फादर की आज की डेट में जितनी एज है, ठीक है, आज की डेट में आपकी एज 14 है और उनकी एज से 36 है। आज से कितने सालों के बाद आपकी एज 36 हो जाएगी? That is what I want to ask. Tell me. 22 years. 22 years. Now this is what is the crux of this question. लाइन को ध्यान से पढ़ो। When Nisha grows to her mother's present age, कितने सालों के बाद निशा अपने मदर की प्रेजेंट एज के बराबर ग्रो करेगी? एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स ईयर्स के बाद। यहां मैंने क्या किया था? 36 माइनस 14 करके मैंने बोला कि श्रेय विल बी 36 years old आफ्टर 22 years. This is what they are asking, that Nisha will be of x square plus 2 years old after x square plus 2 minus x years. ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? Say yes or no? Yes sir. ठीक है, अब आगे देखो। Now we have to write the equation according to the question. After क्या हो रहा है यार इसको? According to the question, after
x square plus 2 minus x years. Age of Nisha will be x square plus 2. ठीक है. And Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. Age of Asha will be equal to 1 year less than 10 times the present age of Nisha. 10x minus 1. Asha's age will be 10x minus 1. Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. ठीक है. अब after ठीक है, when Nisha would grow to her mother's present age, Asha's age would be, जब निशा अपने मदर के प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएगी, उस टाइम पे आशा की जो एज होगी that will be 10x minus 1. दोनों को इक्वेट कर दो, you will get your answer. दोनों को इक्वेट कर दो, you will get your answer. ठीक है भाई, करना नहीं होगा तो बताना, वैसे हो जाएगा इस क्वेश्चन का. दोनों को इक्वेट करें, इन दोनों. तो लेकिन वो तो ये बोल रहे कि अभी जब मतलब निशा की एज जब उसकी आशा जितनी हो जाएगी तब आशा की एज इतनी होगी, तो वो दोनों इक्वल कैसे होंगे? उनके बीच में भी अभी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स का गैप तो होने ही वाला है फिर भी. नहीं सर इक्वेशन ऐसा होगा 10x minus 1 is equal to 2x square plus 4 minus x. 2x square फिर plus उसको हम सॉल्व कर देंगे. प्लस ये इतना age of Asha will also be equal to x square plus 2 plus x square plus 2 minus x. Now equate these two. This is what I was also missing there. Now equate these two. That is 10x minus 1 is equal to 2x square plus 4 minus x. Now what you have to equate? 2x square plus 4 minus x is equal to what? It will be equal to 10x minus 1. इन दोनों को इक्वेट करो, आंसर मिल जाएगा. इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आंसर मिलेगा. यस, that was a mistake. I was not able to understand it properly. ठीक है. So now from here you will get the age of both the daughter and the mother. But the crux of this question was कितने सालों के बाद की बात कर रहे हैं? After how much long they are talking? That was the main crux of this question. That was the main point in this question. ये लोग कितने दिन के बाद की बात कर रहे हैं? ठीक है सर. Now this question number 16. Anybody 15? Anybody having any doubt? No. चलो आगे बढ़ो. ये हो गया very long answer type question. Let us do this question. हाँ भाई, इन दोनों questions में किसी को doubt है? 17th मत पूछना, because 17th is a very nice question. I will really appreciate. I would really appreciate if anybody has done this question. It's a very हो गया था ये क्वेश्चन. हो गया question. Very good. Okay, Shrey, you have doubt in 16th, नहीं 18th. 16th, na? It is 16th. Okay, first tell me how you have solved question number 17. Because I have. Please. Who is speaking? Devansh, your mic is on. Please switch it off. Thank you. Okay. So, Shrey, how you have solved question number 17? 17 or 16? 17. 17 ही तो है. You have solved. You have doubt in question number 16 now, but I want to know how you have solved question number 17. Okay, sir. Yes, sir.
Set t minutes past 2 p.m. The time needed by the minute hand of a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square by 4 minutes. So, sir, if we take it up at t minutes past 2 p.m., the time needed by the minute hands would be 60 minus t minutes for And showing 3 till t p.m. very good. And 60 minus t will be equal to t square upon t square 4 by 4 minus 3. And Very- we will equate वेरी it. वेरी गुड वेरी गुड। भाई देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मंत्र था, एक ही मूल मंत्र था, जो मूल मंत्र हम सभी जानते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। हम सभी जानते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। वो मूल मंत्र ये है कि बेटा 1 घंटे में 60 मिनट, बस, और कोई मूल मंत्र नहीं है इस क्वेश्चन। और थोड़ा सा अंग्रेजी समझो और सवाल को करो। सवाल क्या बोल रहा है? एट t minutes past 2, मतलब 2:t पे, 2:t पे द टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक टू शो 3 p.m. अगर 2:15 हो रहे हैं तो बेटा ये बताओ 3 बजने में कितना टाइम बाकी है? 45 मिनट्स। Yes, sir. भाई अभी 7:11 हो रहा है, तो 8 बजने में कितना समय बाकी है? 49 मिनट्स। 60 minus 11। द सेम थिंग इज हियर। अगर 2:t हो रहे हैं तो सर 3 बजने में कितना टाइम बाकी है? 60 minus t, and this 60 minus t will be equal to, this 60 minus t will be equal to t square upon 4 minus 3. सॉल्व कर लो, आंसर आ जाए। 60 minus t is equal to t square upon 4 minus 3. Solve कर लो, whatever you will get, that will be the answer. Moving to the next question. I'm not solving, I hope you guys will solve it, right? Moving to the next question. Moving to the next question. क्या है भाई सवाल? देखो भाई सर, सवाल देखें। सवाल ये बोलता है, सवाल ये बोलता है, बड़ा अच्छा सवाल। 16 हो गया है सर, तो मेक करना तो चलेगा। चलो ठीक है, देख लो एक बार। In the center of a rectangular lawn of dimension 50 into 40, a rectangular pond has to be constructed so that the area of the grass surrounding the pond, area of the grass surrounding the pond is 1184. That means ये जो ग्रास है, ये जो ग्रास है, इसका जो एरिया है 1184। ठीक, अब मुझे जो है इसको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते, देखो सॉल्व करते कैसे। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। देखो कैसे सॉल्व किया जाए। कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। देखो, एक तो तरीका ये होता है कि अंदर के डायमेंशन को कुछ मान लो और उसके बाद जो है अंदर के डायमेंशन को कुछ मान लो, बाहर का एरिया लिख दो, अंदर का एरिया लिख दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। दैट इज मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 जो मैं बताना चाहता हूँ वो समझो, वो समझना, जरा मेरी ध्यान से मेरी बात समझना कि सर ये जो डिस्टेंस है इसको x मान लेते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी आल्सो इक्वल टू x। ये वाला जो डिस्टेंस है इसको अपन y मान लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस दिस विल बी आल्सो इक्वल टू y। तो यहाँ पे देखो मेरे पास x इंटू वाई के 4 कॉरिडोर्स बन रहे हैं। ये जो x इंटू वाई के हैं ये मेरे पास 4 कॉरिडोर्स बन रहे हैं। इसके अलावा जो मेरा रेस्ट ये वाला जो पोर्शन है इसकी लेंथ कितनी हो जाती है? दिस इज 50 माइनस 2x, इसकी जो लेंथ होगी डेट इज 50 माइनस 2x, और इसकी जो लेंथ होगी दिस इज ऑल्सो 50 माइनस 2x। दिस लेंथ विल बी, this length is y. So now see, what you have to do is basically you have to calculate the inner portions area. The question is saying in the, see, the method that I was trying to tell is not working here, so I will not tell you that method. Unnecessarily you guys will get confused. So what you have to do is let us solve this question in the
conventional manner that we have. The question is saying in the center of a rectangular lawn of dimension this, a rectangular pond has to be constructed so that the area of the grass, this grass is equal to whatever it is 1184. तो अब मुझे जो है लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है इस पॉन्ड का। तो अगर मैंने इस पॉन्ड की लेंथ को L मान लिया तो और इसको अगर मैं B मानता हूं तो माय डियर फ्रेंड दिस लेंथ विल बी 50 minus this length will be 50 minus L divided by 2. Here also I will have 50 minus L by 2. ठीक है। further this अगर मैंने इसको B माना तो this will be equal to 40 minus B divided by 2 and this will be equal to 40 minus B divided by 2. अब समस्या ये आ रही है मेरे पास दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। Now what I should do? Anybody who has divided by 2 इसलिए क्या बेटा, क्योंकि equal by symmetry of the figure I can say that ये जो डिस्टेंस होगी और ये वाली जो डिस्टेंस होगी दोनों बराबर होगी। Now what should I do? Anybody who has solved the question? If he or she wants to help me out. The problem here is I'm getting two variables. सुने, can you help me out? सर इसमें अगर उसके L और क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं सर कुछ रेक्टेंगुलर है तो प्रॉब्लम है ना, स्क्वायर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रेक्टेंगुलर है, दैट इज द प्रॉब्लम। L और B होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे। सर मतलब अगर हम, मैं बोला था कि अगर हम पॉन्ड के जो डायमेंशंस फाइंड करने हैं उसको ही अगर हम L और B मान ले, ना कि वो जो ऊपर जो रेक्टेंगल कॉर्नर्स में बन रहे हैं। नहीं पॉन्ड के डायमेंशन को L और B मानो, फिर आगे क्या करें? पॉन्ड का एरिया माइनस, उसे L B मान ले तो हमें और एक इक्वेशन मिल जाएगा कि 50 into 40 यानी कि 2000 माइनस L into B is equals to 1184। तो उससे तो L और B की L into B की वैल्यू तो मिल गई मेरे को भाई। 50 into 40 2000 minus L into B is equal to 1184. From here I can get the value of 1184. This will be equal to 16 and 800. That is equal to 816. Now what? तो फिर अगर हमने L और B की मान ली है तो अगर हमने जहाँ पे आपने जो D जैसी लाइन की है सर उसको ही हम अगर पूरा एक्सटेंड कर दे तो ये पूरे लॉन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सर। तो फर्स्ट पार्ट की जो एरिया होगा वो होगा 50 into 40 minus L by 2। फिर सिमिलरली उसके नीचे भी ऐसा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो 2 मतलब उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर, 2 टाइम्स करेंगे क्योंकि फिर लेफ्ट फिर सर जो लेफ्ट और राइट की जो एरियाज बची उसको हम y into 50 minus b by 2 करके लिख सकते हैं उसका एरिया। तो उसको भी 2 टाइम्स, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम है। फिर सर तो उन दोनों का प्लस करेंगे फिर भी हमें आंसर 1184 ही मिलना चाहिए। बट डोंट यू थिंक फिर उसको इक्वेट करेंगे लेकिन उसको इक्वेट करके सर आंसर भी आया, लेकिन आंसर सर जो दिया है उससे अलग आ रहा है आंसर। Okay. So now have you solved this question? सर मैं भी ये स्टेप पे अटक गया था। ये स्टेप पे अटक गए थे। Anybody who has solved this question? Nobody. सर मैंने चालू में ऐसे ट्राई किया था 50 minus 2x होल इनटू 40 minus 2y is equal to एरिया, लेकिन सर फिर वही दो वेरिएबल आगे जाके फंस दो गए। वेरिएबल आ रहे हैं। See, I have a gut feeling that there is something incorrect. ये ऐसा मेरे को लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही वेरिएबल पूछ रहा, एक ही वेरिएबल मिल रहा है, बट स्टिल give me some time. What I will do is I will discuss this question. We will start from this question in the next class. ठीक है, give me some time. We'll start from this question in the next class. Okay, I'll stop here and I'll stop here today. ठीक है,
We'll start with this question number 16 in the next class.